ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବିକାଶ ଧାରାରେ ସେ କିଭଳି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ସେ ନଗର ସଭ୍ୟତାକୁ ବା ନଗର ସଭ୍ୟତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଆସିଲା ପରେ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ସେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ତାକୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ବଳପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଉଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ବଳପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକା ହେଲା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବନି ଯେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ ବା କିଛି ଲୋକ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ପରାଜିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଲେ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ପରାଜିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କଲେ। ପରାଜିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଜ ସେହି ଜମିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି କାମ କରିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ ବା ବଳପୂର୍ବକ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବା ଜଗୁଆଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ଜଗୁଆଳିର କାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରାଇଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଏକରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମହଜୁଦ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟା ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ରହୁନଥିଲା। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇ ସବୁ ସାଧନର ବା ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀର ମାଲିକ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ, ମହଜୁଦ କରି ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଧନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ତା'ର ବିକାଶରେ ସେ ଲଗେଇବ, ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲା। ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର ହେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯେହେତୁ ହେଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତା'ର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସେ ମାଲିକ ପାଖରେ ରହି କରିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ
एमाने ये श्रमिक गोष्ठी काम करिले। से जमीदार गोष्ठी जमीर तो मालिक है, धन संपत्तिर मालिक है, एवं से गोटे गोटे गोष्ठी सैनिक गोष्ठी को मध्य पाइला। विभिन्न संघर्ष समय ताको साहाय्य करिवे, तार खाद्य सामग्री को जगिबे, तार जमी को जगिबे बा जमी को सुरक्षित भाव जमी को सुरक्षा देबे। ये भाव में गोटे सैनिक गोष्ठी उदय है। सैनिक गोष्ठी जमीदार को साहाय्य कले। ता सहित आ गोटे जिनस देखादेला, आम देखीचे नवपाषाण युग पर पर जो धार्मिक परंपरा मनुष्य मध्य उदय होता, से धार्मिक परंपरार नेतृत्व नेउथले किछि गोष्ठी बा बुद्धिजीवी गोष्ठी, जो माने कि प्रकृतिर विभिन्न परिवेश बा प्रकृतिर विभिन्न जो परिवर्तन होता ताको लक्ष्य करी से माने तार सठिक विश्लेषण मध्य किछि मात्रा रे करि पारुथिले, अनुमान करी कहि पारुथिले। तेणु ता सहित सेमानकर मध्य आ गोटे जिनस थिला जे प्रकृति को किबळी उपासना करा जीवो, सेही उपासना प्रक्रिया मध्य सेमानको जणा थिला एवं सेमानक द्वारा से कार्य सुचारू रूपे करुथिले बोली सेमानकर विश्वास होतला, लोकमानकर विश्वास होतला तांका उपरे। तेणु से गोष्ठी मध्य से जो बुद्धिजीवी गोष्ठी थिले बा जो धार्मिक नेतृत्व नौथुवा गोष्ठी मध्य बा जहाको आमे कहउथिले पूजक गोष्ठी, सेमान मध्य से जमी मालिक सहित मिसिले। ता अर्थ जमीदार संगरे सैन्य सामंत रहिले, ता अर्थ से गोटे शासक वर्ग हो गला। से अंचलर अधिवासी मानंकु से नियंत्रण करने को लगिला। तांकर समस्त प्राइवेसी रे सेमानकर जो निजस्व स्वाधीनता थिला, से स्वाधीनता को मध्य सेमाने नियंत्रण करने को लगिले। ता अर्थ से शासक वर्ग पाखरे सैन्य सामंत रहिले एवं ये धार्मिक नेतृत्व माने मध्य रहिले। जो नेतृत्व माने को आमे पूजक गोष्ठी कहूचे, तीनोटी गोष्ठी एकत्रित रहिले राजन गोष्ठी संगरे बा शासक वर्ग संगरे सैन्य सामंत बा क्षत्रिय गोष्ठी। आ गोटी आमे देखिले ता संगरे आ गोटी गोष्ठी मध्य रहिले जो माने कि सैन्य सामंत बा क्षत्रिय गोष्ठी। आ गोटे होची पूजारी गोष्ठी। ए गोटी तीनोटी गोष्ठी सेमानकु साहाय्य करिले। श्रमिक माने सेही श्रम बदल रे सेमानकु किछि पारिश्रमिक मिलुथिला। एही प्रक्रिया विश्वर विभिन्न जगह देखा देउथिला। आम जो देखा जो आमर कृषि भित्तिक समाज रु बा ग्राम भित्तिक समाज रु नगरीकरण आरंभ हैला। ये नगरीकरण बा नगर सभ्यता बा समाज रु सभ्यतार जो सृष्टि हैला, सेते बेले तीन चारोटी नदी कूल रे ये सभ्यता गढ़ी उठिथिबार लक्ष्य करा जाए। समाज और सभ्यता भितर यह फरक थिला। समाज रे लोक माने गोष्ठीगत भाव में जीवन यापन करुथिले। किछि नीति नियम थिला, किछि चलिया पई जेतिकी नीति नियम दरकार सेतिकी थिला, किछि प्रथा परंपरा मध्य रहिथिला, धार्मिक कर्मकांड मध्य किछि मात्रा रे थिला। किंतु सभ्यता रे तार विकास घटिला। तार तो विकास घटिला कोन ना सभ्यता रे शासक वर्ग को चलिया पई बा समाज को नियंत्रण रखिया पई से जो नीति नियम करिला, से नीति नियम से देखागला। तार तो नियंत्रण करने पाई समाज को किसी गोष्ठी हाथ में जो नियंत्रण व्यवस्था रहिला ताकू आधार करी नीति नियम तैयारी करागला। आ गोटे जिनस देखागला जे कृषि भित्तिक समाज रु जो शहरीकरण प्रक्रिया आरंभ होला तार मुख्य आधार थिला व्यापार। व्यापार विशेषकर नदी कूल मानक गढ़ी उठुला। तेणु से नदी कूल मानक सब सभ्यता गढ़ी उठिला। प्रथम आम देखा
मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सभ्यताटा आमर आज जो इराक अच्छी इराक ईरान तुर्क बा तुर्की यही अंचल देखा मिले एवं सेटा यूफ्रेटिस आ टाइग्रिस दुईटी नदीर मध्य भाग से अवस्थित थिला। तापर आ गोटे देखिए आम से मिसर बा जोटा कहे आम आज इजिप्ट से मध्य गोटे नदी कूल गढ़ी उठुला। से नदीटी है नील नदी। आज की 500 ରୁ 6000 वर्ष पूर्वे ये सभ्यता गुड़िक विभिन्न जगह मुंड टेकी से भली आम दक्षिण एशिया मध्य गोटे मुंड टेकी आ गोटे सभ्यता सेटा हरप्पान सभ्यता बा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यतार हरप्पा और मोहनजोदारो दुईटी नगर सभ्यता रो विकास घटीथिला। सेटा को इंडस नदी कूल तापर आम देखा होयांग नदी कूल चाइनार होयांग हो नदी कूल आ गोटे सभ्यता विकास लाभ करथिला। ये सभ्यतार आम देखिले मुख्यतः दुईटी वर्ग आउ टे भल भाव निरीक्षण कले 4टी वर्ग देखा जाउथिले। मुख्यतः दुईटी वर्ग अर्थात गोटे है शोषित वर्ग बा श्रमिक बा कृषक आउ गोटे शोषक वर्ग बा मालिक वर्ग जी कि शासक वर्ग रहिले एवं तांको सहाय्य कले क्षत्रिय माने। यही जो परंपरा सृष्टि होता गोटे मालिक वर्ग पाखरे निजर संपूर्ण स्वाधीनता को स्वाधीनता नथिबा किछि श्रमिक कृषक काम करुथले से मानकु दास कह जाउथला। निजर स्वाधीनता नथिला निजर जमी नथिला निजर कोनोसी स्वतंत्र परिचय नथिला केवल मालिकर परिचय मालिक पई काम करिबारे से मानकर परिचय मिलुथिला। तो से दास समाज विशेषकर यूरोप रे बेसी देखा देथिला। अति तीव्र मध्य थिला शोषणर व्यवस्थाटा अति तीव्र देखा देथिला। सेठी 2-3टी पर्यायर दास मानक अख्तियार कर जाउथिला। गोटे है बलपूर्वक अख्तियार द्वितीय है जो संघर्ष होता संघर्ष जो मैंने पराजित होते से दास रोते अन्य पाखे गोटे मालिक पाखे आउ तृतीय व्यापार माध्यम तार तो क्रयदास सिस्टमटा सेठी थिला। जड़े बेपारी आउ गोटे बेपारी को से ए दास मानक बिक्री करुला। यही प्रक्रिया जदि आम आसीबा एशिया को बा भारत भूखंड को सेठी से दास प्रक्रियाटा क्रय अवस्था नथिला। भारत रे बा भारत भूखंड महादेश बा भारत उपमहादेश जोटा को अभिभक्त भारत तो सेठारे से दास मान को शूद्र कह जाउथला। तार तो 4टी वर्ग बा जोटा आम कहे चतुर्वर्ण व्यवस्था से भारतवर्ष देखा जाउथला। गोटे होते पूजक वर्ग जोटा कहे आम ब्राह्मण क्षत्रिय जो मैंने कि सैन्य सामंत रही एवं वैश्य जो मैंने बेपार करते शूद्र जो मैंने के 3टी जातिर सेवा करते एवं से सेवार प्रतिबदल से बंचिया पाई स्वल्प पारिश्रमिक मिलुला। ये दास समाज रहुथिबा लोक माने अति शोचनीय भाव जीवन अतिबाहित करुथिले। निजस्व परिचय किछि नथिला
मालिकर परिचय से बंचुले ताद्वारा से मनरे विद्रोह आसवा स्वाभाविक ए विद्रोह आसूला विद्रोहर नेतृत्व विभिन्न जगार विभिन्न नेता माने नहीं सेति मध्यरु अनेक प्राणबली देइछंती तथापि विद्रोह शेष होई नाही ये विद्रोह लागी रहिला तार फलस्वरूप यूरोप रे आम देखी से यूरोप रे मध्य गोटे दास विद्रोह प्रमुख दास विद्रोह देखा देइथिला जोटा कि आम स्पार्टाकस विद्रोह बोली कहउतले तार प्रथम विद्रोही स्पार्टाकस थिले एही बड़ी भाव रे भारत मध्य आम देखिबा यदि भारतर मध्य एशिया से दास मानकर किछि दास जो मान कि पशुपालन कार्य करुले जोटि कि पशुपालन कार्य सेठी भल भाव हो पार नथिला आम जानिचे दास समाजर परवर्ती स्टेज रे जो माने कि दास विद्रोह परे से माने किछि सुविधा पाइले यूरोप रे तार अर्थ से मानकर किछि निजस्व संपत्ति रहिला से मानकर पशु तांग पाखरे रहिले पशुपालन कार्य मध्य से दास मान को लगे करा जाउथला से माने सेठिकार चारण भूमि से मानकर सेठी नथिला खूब कम थिला तेणु से माने चारण भूमि खोजी 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 मध्य एशिया इराक ईरान दे भारत भूखंड आसी पहुँचते एवं परवर्ती समय से नदी कूल जोटा कि आम कहे सिंधु नदी बाइंडस रिभर से नदी कूल से माने आसी रहिबा आरंभ कले परवर्ती समय परवर्ती पर्यायर आम आहरी डिस्कसन करवा किभली भारत मनुष्य को जो मध्य एशिया आसीथिबा अधिवासी माने आसिले एवं भारतर किभली भाव से माने बसति स्थापन करिले आज एतिकी परवर्ती पर्यायर आम आलोचना करवा रहुछि नमस्कार।